So let's move for the tedious part, which is a very lengthy subject for the discussion as well. So in the first day one, day two, we had a lots of discussion on the tedious part, that we have to take a declaration from the employee, what salary they have received from the previous employer, what salary we are going to give them in this organization. And according to that, we calculate their TDS, if that is applicable to them. And फिर हम उनको advise करते हैं that yes, you can go for this kind of investment, or you can take exemption under this section. How much amount you can invest, and according to that, how much tax you can save. So first we have to be very much aware what are the resumes which is available with us and what are the calculations. So let me tell you, whenever you are calculating the TDS, calculate it on the CTC, not on the gross or any other thing. You are having the complete components, basic, HRA, special allowance, other allowances, or flexi reimbursement, whatever you are providing to the employee. You have the salary structure you are preparing as per the company policy and as per the structure what is provided to you. This is one Excel tool which we will provide you when you are hiring anyone. You can use this tool to identify what is the tax deduction need to be deducted from employees' monthly salary. So in this Excel sheet, you have to mention your CTC over here in the green area. According to that, this will calculate other components automatically. I advise you, when you are filling it, calculate as per your salary structure. This structure, what I have prepared for your better understanding, easy understanding. So here I'm just taking the CTC part only, what we are paying to ex-employee. Okay. So once we enter the CTC part, take an example. If an employee have a CTC of 19,75,000 rupees, what will be the calculation? Basic, we are keeping 50% of the CTC, 9,87,500. HRA is 50% of the basic, and balance amount we kept in the special allowance. So it is fixed. Now you are seeing the grand total is 19,75,000, which is matching with your CTC. पर्क वैल्यू ऑफ कार, अगर मैंने कोई कार दिया होता तो मैंने भी कार नहीं लिया. HRA एग्जम्पशन. सो HRA एग्जम्पशन का रूल होता है, एक्चुअल रेंट एम्प्लॉय ने क्या पे किया, 50% और 40% का कॉन्सेप्ट. 50% अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटी में रहता है, रेजिडेंस प्रूफ मेट्रो सिटी का है, देन 50% इज एग्जम्प्टेड, else non-metro city में 40% is exempted. What is the calculation? 50% of the basic क्या है, 9,87,500, उसका हमने 50% निकाला, that is 4,93,750 rupees. This is the 50%. And actual HRA paid by the company. Actual HRA paid, that is again same. एक्चुअल रेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉय ने क्या पे किया, दैट इज अ फॉर्मूला बेस्ड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक, whichever is less that will be exempted under house rent allowance. Whichever is less that will be exempted. So here you are seeing that 50% of the basic 4,93,750 रुपए. एक्चुअल HRA भी सेम है. इन केस हम मान लेते हैं ये एम्प्लॉय 40% नॉन मेट्रो सिटी में था, गाजियाबाद में रहता है, नॉन मेट्रो सिटी है, 40% हमने ले लिया. HRA वो दिखाता नहीं, उसका अपना घर है. व्हाट इज एग्जम्प्टेड? जीरो एग्जम्पशन.
एंड सेम विद माई शीट। से फॉर एग्जाम्पल ये एम्प्लॉय 10,000 रुपये पे कर रहा है, HRA रेंट पे करता है। एंड व्हाट इज द कैलकुलेशन? 10,000 इन 12, बेसिक का 10%, ₹21,250 actual rent, which will be considered as per Income Tax Act. Whichever is less, that will be payable or exempted under the section of HRA House Rent Allowance. Under section 1030 आप देखेंगे 21,250 एग्जाम्प्ट हो गया मेरे टैक्स, मेरी इनकम में से। HRA एग्जाम्शन के बाद मेरी जो इनकम आफ्टर एग्जाम्शन आएगी वो 19,53,750 आती है। दिस टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दी ओल्ड टैक्स रेजिमी। ओल्ड टैक्स रेजिमी में मुझे एग्जाम्शन मिलती है HRA की, बट न्यू टैक्स रेजिमी में HRA का एग्जाम्शन नहीं मिलता। We will go one by one. Old tax regime, then I will give you a brief change or discussion. What is the difference between old regime and new regime? By the calculation only we can identify it. So अब मेरी एग्जाम्शन के बाद इनकम आफ्टर एग्जाम्शन मेरी बन गई 19,53,750 रुपए। एज पर इनकम टैक्स एक्ट हर एक एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज का, हर एक टैक्स पेयर को 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मुझे मिला 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाने के बाद जो मेरी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी है, दैट इज 19,03,750 रुपए। दैट मीन्स जो मेरी टैक्सेबल इनकम बन रही है अंडर द हेड ऑफ द सैलरी वो है 19,03,750 रुपए, जो हमने कहां से लिया है? मेरी टोटल इनकम माइनस HRA एग्जम्पशन माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेरी इनकम आ गई विच इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अब इसमें से बाकी सारी चीजें मेरी डिडक्शंस होंगी। वो क्या क्या डिडक्शंस होती हैं? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसिंग लोन मुझे मिला है, मैंने लिया है, तो वो एग्जम्प्ट होता है। दैट मैक्सिमम लिमिट इज 2 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 24B। इनकम और लॉस फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी अगर कुछ है, देन वी कैन मेंशन हियर। फ्लेक्सी रिम्बर्समेंट, अगर कोई फ्लेक्सी रिम्बर्समेंट विच इज एग्जम्प्टेड, जिसका एविडेंस, जिसका बिल्स मुझे दिया जा चुका है एज पर कंपनी पॉलिसी जो हमने पहले डिस्कस किया था डे 1 डे 2 में, अगर कोई फ्लेक्सी रिम्बर्समेंट कंपनी पॉलिसी बेस्ड है और एज अ टैक्स बेनिफिट हम एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट में अगर मुझे बिल सबमिट करता है, देन जितना भी उसने अमाउंट का बिल सबमिट किया है वो अमाउंट मेरे एग्जम्पशन में कंसिडर हो जाएगा और मैं यहाँ पे फ्लेक्सी रिम्बर्समेंट मेंशन कर दूंगा। रेस्ट ऑफ अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ टैक्सेबल इनकम। डिडक्शन विच इज अलाउड अंडर 80C, 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन आपको अलाउड है। आई विल टेल यू व्हाट आर दी हेड्स वी कैन कंसीडर अंडर सेक्शन 80C, व्हाट आर द हेड्स वी कैन कंसीडर अंडर सेक्शन 80D। अभी फ्लैट लेकर के चल रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सिवाय एक रेंट के। नेट टैक्सेबल उनकी इनकम उसकी होगी 19,03,750 रुपए, क्योंकि उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस 19,03,750 रुपए पे उसका टैक्स कैलकुलेट हो गया 3,83,625 रुपए। करेक्ट? नाउ आई विल टेल यू 3,83,625 की कैलकुलेशन क्या है। दिस इज द ओल्ड रेज्यूमे। टैक्सेबल इनकम हमने कितनी निकाली? 19,03,750 रुपए। टैक्स स्लैब की कैलकुलेशन क्या है? अप टू 2.5 लाख रुपए मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक, अगले 2.5 लाख रुपए पे मेरे 5% का टैक्स कैलकुलेट होगा विच इज 12,500 रुपीज। 5 लाख तक का आपका क्या टैक्स कैलकुलेट हो गया?
नेक्स्ट जो स्लैब है दैट इज 5 to 10। अगर मेरी इनकम नेक्स्ट स्लैब में भी फॉल हो रही है 5 से 10 वाले फॉल में, तो 5 लाख रुपए के ऊपर 20% का टैक्स कैलकुलेट किया, हमारी अमाउंट आ गई। मेरी सैलरी 19,03,750 रुपए, 10 लाख से ऊपर जो भी गया उसके ऊपर 30% का टैक्स कट जाएगा फ्लैट। से फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर सैलरी होती 9 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम, तो क्या होता? मेरी केवल कैलकुलेशन यहीं तक रह जाती। जितनी आपकी इनकम होगी जिस स्लैब में आप फॉल करेंगे, अप टू दैट लिमिट आपकी टैक्स कैलकुलेट होती रहेगी। पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, उससे अगले 5 लाख पे 20%, रेस्ट ऑफ अमाउंट अगर कुछ बचा उसके ऊपर 30% का फ्लैट टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी 3,83,625 रुपये। ये होती है ओल्ड रेज्यूमे की टैक्स कैलकुलेशन। नाउ वी सी द न्यू टैक्स रेज्यूमे। न्यू टैक्स रेज्यूमे में अभी जो बजट पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हैं। उसमें टैक्स स्लैब रेट चेंज कर दिए गए हैं, टैक्स स्लैब्स चेंज किए गए हैं, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन का एडिशनल बेनिफिट आपको दिया गया है एम्प्लॉयज को। सैलरी कैलकुलेशन मेरी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मेरी जो ग्रैंड टोटल सैलरी है, जो इनकम आएगी वो 19,75,रुपए 75,000 ही आएगी। HRA न्यू टैक्स रेजिमे में अलाउड ही नहीं है, तो एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा। आपकी इनकम आफ्टर एग्जाम्पशन सेम 19,75,000 रुपये होगी। न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक टैक्स पेयर को मिलेगा दैट इज 75,000 रुपीज। जब 19,75,000 रुपये में से आप 75,000 रुपीज लेस कर देंगे, आपकी इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी वो 19 लाख रुपए होगी। जब मैं बोलता हूँ इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, दैट मीन्स आपकी अदर इनकम भी हो सकती है। आपने कोई अदर प्रॉपर्टी बेची हुई है, वहां से रेंट आपको रिसीव हो रहा है, आपने लेट आउट किया वो उससे रिसीव हो रहा है इनकम, या फिर आपने कोई अदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से आपको बेनिफिट्स आ रहे हैं, दैट इज अगेन योर अनदर इनकम। बट सैलरी में जो आपकी इनकम कैलकुलेट हो रही है जिसके बेसिस पे हम मंथली TDS कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी ओनली। तो अंडर द हेड ऑफ सैलरी आपकी सैलरी आ गई 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए में कोई एग्जाम्पशन हमें नहीं मिलता न्यू टैक्स रेजिमे में। देर आर फ्यू एग्जाम्पशंस विच आई विल टेल यू व्हाट आर द डिडक्शन बेनिफिट्स वी कैन प्रोवाइड। अब जो हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा न्यू टैक्स रेजिमे में वो 19 लाख रुपए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। और 19 लाख के अकॉर्डिंग क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है मेरी, एज पर न्यू अमेंडमेंट अप टू 3 लाख रुपीज मेरा कोई टैक्स नहीं लगेगा फर्स्ट 3 लाख रुपीज पे। द नेक्स्ट स्लैब इज 3 to 7, दैट मीन्स अगले 4 लाख रुपए पे अप टू नेक्स्ट 4 लाख रुपीज मेरी जो टैक्स कटेगी वो 5% कटेगी 4 लाख रुपीज पे, दैट इज 20,000 रुपीज। 7 से 10 लाख रुपए तक जो नेक्स्ट 3 लाख रुपीज है उस पे मेरा 10% चार्ज होगा। 10 to 12 नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पे 15% का टैक्स चार्ज होगा। 12 to 15 नेक्स्ट 3 लाख रुपीज पे 20% का चार्ज होगा। एंड ओवर एंड अबव जो भी अमाउंट बनेगा उस पर 30% का फ्लैट टैक्स चार्ज होगा। सो इसके अकॉर्डिंग आप 19 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। पहले 3 लाख पे 0, 4 लाख पे 5%, 3 लाख पे 10%, अगले 2 लाख पे 15%, फिर 3 लाख पे 20%, और रेस्ट ऑफ अमाउंट पे आपका 30% का चार्ज हुआ। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट को, दैट इज 26,000 रुपीज टैक्स अमाउंट। ये आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ। हमें पता होना चाहिए किस स्लैब पे कितना परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाते हैं। टैक्स कैलकुलेशन के बाद आता है हमारा सरचार्ज। व्हाट इज द कैलकुलेशन फॉर द सरचार्ज? अगर किसी की भी सैलरी इनकम
50 लाख रुपए तक है, कोई भी सरचार्ज आपको पे नहीं करना। 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम होती है तो ओल्ड और न्यू दोनों में 10% का सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो 15% का सरचार्ज लगता है आपकी टैक्स अमाउंट पे। अबव 2 CR अगर आपकी इनकम है तो 25% सरचार्ज आपकी टैक्स वैल्यू पे, टैक्स अमाउंट जो है उसके ऊपर आपका सरचार्ज लगता है। देन आता है हमारा सेस, एजुकेशन सेस वगैरह। ये आपका टोटल 4% चार्ज होता है, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी प्लस सरचार्ज। जो दोनों अमाउंट अगर आपके आते हैं उसके ऊपर सेस लगता है 4% का। आप ओल्ड लेंगे चाहे न्यू रेज्यूमे लेंगे, उस पर सेस का चार्ज सेम होगा। जब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, सरचार्ज और सेस तीनों मिला लेंगे तो मेरी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी एनुअल आती है। आप जब भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे एनुअली चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने सीटीसी भी एनुअल लिया है, हमारे सारे कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन एनुअल है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टैक्स करेंगे मंथली टीडीएस की। जो भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आई उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, आपकी मंथली टैक्स कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगी। आप एम्प्लॉय को बता सकते हैं आपकी मंथली टैक्स लायबिलिटी इतनी हो रही है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये क्या है? तो अंडर सेक्शन 87A हमें रिबेट दी जाती है ओल्ड टैक्स रेजिमे में 12,500 रुपए तक और न्यू टैक्स रेजिमे में 25,000 रुपए तक, विद अ कंडीशन दैट इन न्यू रेजिमे अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो 25,000 रुपए का रिबेट मिलता है। ओल्ड टैक्स रेजिमे में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 रुपए तक का रिबेट मिलता है। जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके ऊपर रिबेट डालते हैं, हमारा टैक्स जीरो हो जाता है। ये तो हमने समझा टैक्स कैलकुलेशन। डिटेल्ड कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी, किस स्लैब वाइज, किस स्लैब पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा। नाउ वी विल स्टडी द टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स। बिफोर गोइंग दैट, टैक्स कैलकुलेशंस में किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कोई डिस्कशन करना है? ओके, नो डिस्कशन। टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स, लेट्स रीड आउट। Are you able to see my screen? Yes. Yes. Okay, thank you. There were some technical issues because that my screen was. Just give me a second.
So see here, there are some deduction benefits. HRA, as I told you, original rent receipt for the year of 24-25, we have to collect from the employees at the time of submission. Actual rent paid exceeds 1 lakh rupees. It is mandatory to submit copy of PAN card of the landlord. In case of landlord does not have a PAN, you need to submit a declaration to this effect from the landlord along with the name and address of the landlord. What is the calculation that least of actual rent paid minus 10% of the basic salary, 50% basic in case of metro city, 40% basic in case of non-metro city, and actual rent received, whichever is less, will be exempted. What we are providing under Section 80C, they are investment in PPF, NCS scheme, life insurance premium payment, children tuition fees, principal payment of home loan, investment in Sukanya Samriddhi Yojana, ULIPs, ALSS, 5-year deposit scheme, senior citizen saving scheme, subscription to notified securities, notified deposit schemes, contribution to notified pension fund set up by mutual fund, subscription to home loan scheme, subscription to deposit scheme, contribution to notified annual plan. So these are some 80C deduction which can be allowed. 80CCC is saying that for amount deposited in annuity plan of LIC for any other insurers for a pension from a fund referred to in the section 1023 AAB. 80CC. 80CCD is the employer's contribution to NPS account maximum up to rupees 1,50,000 rupees. These are the deduction which you can allow under section 80C. इनके अंडर आप जितने भी अमाउंट देंगे उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है दैट इज 1,50,000 रुपीज. 80C, 80CCC, 80CCD1 इसकी लिमिट 1,50,000 रुपीज तक की. देयर इज वन एडिशन अंडर सेक्शन 80CCD1B, additional contribution to NPS on the receipt of contribution to retirement benefit pension scheme that is exempted up to 50,000 rupees. तो इन शॉर्ट में अगर बोलूं 80C में आप 2 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन अलाउड कर सकते हो इन कंडीशन टू दैट कि 50,000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो एनपीएस में एम्प्लॉय सेल्फ से करेगा एडिशन टू द सैलरी. सैलरी में से कोई डिडक्शन नहीं होगी एनपीएस की. वो एग्जम्प्ट होता है, वो डिडक्शन अलाउड होता है अंडर सेक्शन 80CCD1B. देयर आर 2 सेक्शन 80CCD1, 80CCD1B. ये दोनों एनपीएस के बारे में बात कर रहे हैं. जो 80CCD1 है वो एम्प्लॉय की सैलरी से मंथली हम डिडक्ट कर रहे होते हैं. जो एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है वो भी 1.5 लाख रुपए तक की एग्जम्प्ट है, उसी में वो क्लब होता है 80C के लिमिट में. लेकिन जो एम्प्लॉय अपने आप से खुद से कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस में दैट इज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें अप टू 50,000 रुपीज मैक्सिमम एग्जम्प्ट होता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने तो इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का लिया हुआ है, एडिशन आप मुझे डिडक्शन दे रहे हो 1.5 लाख रुपए तक का, तो क्या बेनिफिट है मेरा. तो हम जब एज अ पेरोल पर्सन बताएंगे हम उनको ये बताएंगे कि आपको मैक्सिमम इतना मिलेगा, डिडक्शन अलाउड है. इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना है वो आप डिसीजन लेंगे. हमारा काम है हम आपको बता देंगे आपको कितना डिडक्शन अलाउड होगा आपके इनकम टैक्स में, वो लिमिट हम बता सकते हैं. इन्वेस्टमेंट क्या करना है वो आपके ऊपर है. अंडर सेक्शन 80E दैट इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन. अगर कुछ प्रोवाइड करते हैं आप बैंक लोन स्टेटमेंट वगैरह तो इंटरेस्ट पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years दैट इज एग्जम्प्टेड. जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है या कर रहे हैं. 80E के बाद आता है हमारा सेक्शन 80D जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंसेस की डिडक्शंस मिलती हैं. मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन अप टू 25,000 रुपीज मैक्सिमम लिमिट. मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द पेरेंट्स मोर देन 60 years old और uninsured parents more than 80 years old. Preventive health checkup deduction rupees up to
5,000 rupees is allowed to individual. And the maximum limit which is allowed under section 80D for the parents is 50,000 rupees. So अगर आप self और अपने पेरेंट्स को मिलाकर के 80D की डिडक्शन की बात करेंगे तो 80D में 75,000 रुपीज तक डिडक्शन अलाउड है when you are adding the medical benefits of your parents. Under section 80DD, what is allowed? Medical treatment for the handicap dependent or payment to a specified scheme for maintenance of handicap dependent. That is, disability is 40% or more than, less than 80%, then 75,000 rupees. If disability is more than 80%, then 1,25,000 rupees. 80DDB, that is talking about the medical expenditure on self or dependent relative for disease specified in Rule 11DD, that you can refer for that. What are the specific disease that is allowed? And this is allowed when you are providing the certificate from prescribed authority. This is must. For less than 60-year-old, either the amount which is paid or 40,000 rupees, whichever is less, that is deducted. For more than 60-year-old, then lower of 1 lakh rupees or amount actually paid. Whatever is less, that will be deducted. That is depending on the prescription and the bills, whatever you are providing. Under section 80U, that is self suffering from disability. So any individual suffering from a physical disability, including blindness or mental retardedness, an individual suffering from severe disability, that in case 75, in a case of severe disability, 1,25,000 rupees. In case of blindness or mental retardation, that is 75,000 rupees reduction is allowed. Now we are talking about section 24B, जहां पे interest on home loan आपको ये डिडक्शन अलाउड होता है अप टू ₹2 लाख का होम लोन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसमें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो हमने डे 1 में पढ़ा था, जहां पे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में हमने बताया था. On the basis of that, you can allow interest on home loan up to 2 lakh rupees. Under section 80C, principal payment of home loan, that is again allowed. So home loan के आप जो डिटेल आएगी उसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की जो रिपेमेंट है वो क्या अमाउंट है और इंटरेस्ट लोन कितना अमाउंट है, और ये दोनों एग्जम्प्ट हो जाती है. बट दे हैव अ डिफरेंट लिमिट, अलाउड लिमिट, द मैक्सिमम. सो 80C में 1,50,000 रुपीज तक जो भी आप सबमिट करेंगे दैट इज अलाउड. अगर इंटरेस्ट होम लोन है, दैट इज सेक्शन 24B, 2 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है. अगर एम्प्लॉय आपके पास 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेड का रिसिप्ट लेकर आ रहा है, तो आप मैक्सिमम कितना अलाउड करेंगे? मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूँ, ज्वाइन कर चुका हूँ, और मैंने आपको बोला जी मेरा तो जो लोन मैं पे कर रहा हूँ इंटरेस्ट होम लोन पे, वो 3,75,000 रुपये पे कर रहा हूँ. आप कितना एग्जम्प्ट करोगे, कितना डिडक्शन दोगे? एनीवन? मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ होम लोन पे 3,75,000 रुपए का. अंडर सेक्शन 24B कितना अलाउ करोगे आप मुझे? 2 lakhs. Okay, anyone else? Anyone else? Everyone is available on the call or not? Amita, Heta, Naresh, Nikhil. Nikhil is not available. Pooja is there. Yes, sir. Vikas. So how much amount you can allow me under section 24B?
my interest what I am paying on a home loan that is 3,75,000 rupees. मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया आप मुझे बताइए अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन आप कितना एग्जेम्पशन अलाउ करेंगे मुझे? So Naresh has the correct answer. Maximum 2 lakh rupees interest on home loan is allowed under section 24B. This is the complete chart. What you can advise to your employee कि आप इस section में up to इस limit तक आप deposit कर सकते हैं, investment कर सकते हैं, and you can take the tax benefit as well. Now let's come to the comparison between old tax regime and new tax regime, which is effective from 1st of April 2024 for the financial year 24-25. So this year अगर कोई भी employee join करता है, हम उसको न्यू टैक्स रेजिमे में जो न्यू प्रोविजंस हैं उसी के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्शन की डिटेल बताएंगे. सो फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन. व्हेन वी से ओल्ड टैक्स रेजिमे में 50,000 है एंड न्यू टैक्स रेजिमे में 75,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर द ऑल टैक्स पेयर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिबेट दैट इज अंडर सेक्शन 87A, ओल्ड टैक्स रेजिमे में 12,500 रुपए एंड न्यू टैक्स रेजिमे में 25,000 रुपए तक अलाउड है. विद एडिशन टू दैट न्यू टैक्स रेजिमे में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो, और ओल्ड टैक्स रेजिमे में अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो. एचआरए एग्जम्पशन केवल ओल्ड टैक्स रेजिमे में अलाउड होती, न्यू टैक्स में नहीं होती. लीव ट्रैवल अलाउंस LTA दैट इज अलाउड अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमे में, नॉट न्यू टैक्स. अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस that is 50 rupees per meal subject to 2 meals a day that is allowed under old tax regime, not in new tax. Interest in home loan that is exempted or allowed under old tax regime. Interest on housing loan under section 24B on let out property that is allowed on both the old tax regime and new tax regime. With addition to that, maximum benefit up to INR 2 lakh rupees on the basis of provisional certificate provided by the bank. In the case of let out property, please refer to the definition mentioned which is under section 24 of the Income Tax Act, because let out property they have a lots of calculation when you are giving any exemption or deduction in new regime. There you have to calculate the value of the let out property as on municipal rate. Then what are the deduction which is allowed as per the state? What are the calculation? Each and everything that is mentioned under section 24 of the Income Tax Act. So if any employee is coming to you to ask the housing loan which is want to claim on the let out property under new tax regime or old tax regime, please refer to the section 24B, 24 of the income tax. Deduction which is allowed under section 80C that is allowed under old tax regime, not in new. Employees own contribution to NPS 80CCDB, that is 1B is old tax regime is allowed, not in new tax regime. Employer contribution to NPS that is allowed in both regime. In addition to that, in new regime, employer contribution to NPS is exempted up to 10% of the basic, and that is under section 80CCD2. Medical insurance premium, dividend disabled individual under section 80U, interest on education loan under section 80E, interest on electrical vehicle loan 80EB, other chapter 6A deduction that is all allowed under section under old regime, not in new regime. Exemption on gratuity under section 10. This is allowed in both of the regime and exempted up to 20 lakh rupees. Exemption on leave encashment under section 10AA that is allowed in both regime, that is exempted up to 25 lakh rupees subject to applicable terms and conditions as per Income Tax Act. Daily allowances and conveyance allowance, these both are exempted when there are prescribed restriction is there.
that daily allowance or convenience allowance which is granted to the employee meet the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence from his normal place of duty, and that is exempt up to extent of expenditure incurred for official purpose only. If the expenses what is claiming under the daily allowance and convenience allowance is exempted only for the official purpose when employee is going outside the office. This we are providing you again with today's email and exercise. This you can calculate. For the tax calculation, I'm again repeating it. When you are calculating the basic salary, HRA, special allowance, other allowances, whatever you can mention over here, that you need to calculate on the basis of किस महीने में एम्प्लॉय ने आपके पास ज्वाइन किया है. अगर एम्प्लॉय मेरे पास अप्रैल में ज्वाइन कर रहा है, मैं पूरे 12 महीने का कैलकुलेट करूंगा. अगर एम्प्लॉय मेरे पास प्रोरेटेड मंथ में ज्वाइन कर रहा है, से फॉर एग्जांपल जुलाई, अगस्त, सितंबर में ज्वाइन कर रहा है, तो मैं उसके सारी कैलकुलेशन प्रोरेटेड बेसिस पे करूंगा. इवन दैट उसकी मंथली टीडीएस की वैल्यूएशन भी जो आएगी वो भी हमारी मंथली कैलकुलेशंस पे आएंगी. Anyone have any question till the time? किसी को कुछ पूछना है टीडीएस से रिलेटेड, पीटी से रिलेटेड, एलडब्ल्यूएफ से रिलेटेड और एनी अदर सैलरी रिडक्शन से रिलेटेड? Okay, Hita has no questions. Anyone else? एक्सक्यूज मी। Yes, Naresh. अच्छा सर, ये मिल जाएगा ना एक्सेल एक्सरसाइज के लिए? यस बिल्कुल, मैं ये एक्सेल शीट, एक्सेल टूल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा. ये स्पेशली आप लोगों के लिए प्रिपेयर है. आप इसमें मेरी जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए भी काम करेंगे. एंड दिस टूल यू कैन यूज इन फ्यूचर पर्पस ऑल्सो. अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो प्रोरेटेड बेसिस पे होनी चाहिए और कैलकुलेशन केयरफुली होनी चाहिए. अगेन प्रोवाइड यू द टूल ओनली. ओके सर, ठीक है. थैंक यू सर. एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन? अगर मैंने इस एम्प्लॉय को 80C में 1.5 लाख रुपए और 80D में 75,000 which is maximum if allowed, then his tax liability will be reduced as compared to previous one. So previously tax was 33,248 rupees. When he allowed him 1,50,000 rupees, 80C, 75,000, 80D, and say for example he has a house और वो housing loan के लिए भी claim करना चाहता है, then we can allow 2 lakh rupees. Sometimes employees आपके पास आके बोलेंगे सर मुझे बता दो रेंट कितना दिखा दूं मैं. So I advise you, please ask the actual rent receipt what they are paying to. ऐसा नहीं होना चाहिए आपने उनको कुछ बता दिया, उसके बेसिस पे उन्होंने फर्जी रेंट स्लिप भर के आपको जमा कर दिया, बाद में लिटिगेशन पार्ट में आप फंस जाओगे. एम्प्लॉय बोलेगा मुझे तो एचआर ने बोला, पेरोल टीम वालों ने बोला, मैंने उतने का बना के दे दिया, मुझे क्या पता, मैं थोड़ा टैक्स बनाता हूँ.
What happened? So I just share one story with you, जहाँ पे एम्प्लॉय ने एक्स अमाउंट का रेंट स्लिप सबमिट कर दिया एचआर को, एंड जो अपने लैंडलॉर्ड को है वो कुछ कम अमाउंट पे कर रहा था। व्हेन फॉर्म 16 इज प्लेस्ड, हमने सारी टैक्स कैलकुलेशन करके आपको सबमिट कर देंगे। फिर क्या होगा, लैंडलॉर्ड भी अपनी टैक्स फाइल करेगा। जब वो फाइल करेगा वो अपने एक्चुअल रेंट पे करेगा। इट फाउंडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि वहां पे डिस्क्रिपेंसी है, विच इज रेज टू द लैंडलॉर्ड, एंड लैंडलॉर्ड फाइल अ कंप्लेंट दैट नो आई एम करेक्ट, the detail which is submitted by the employee is wrong, and there the employee have received one notice from the income tax department, and where he has to prove that why he has submitted the wrong details. The another scenario I'm telling you, जहाँ पे employees अपने ही रिलेटिव को दिखा देते हैं एज अ लैंडलॉर्ड और फर्जी रेंट स्लिप सबमिट कर देते हैं। वी हैव टू क्रॉस चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। जो रेंट स्लिप पे किया गया है, क्या रेंट एग्रीमेंट उन दोनों पार्टीज के बीच में है या नहीं है, उन दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशंस तो नहीं है, अगर रिलेशंस हैं तो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। बिकॉज कल को अगर कोई भी लिटिगेशन आएगी, यू विल बी आस्केबल कि आपने किस बेसिस पे ये अलाउ किया, आपके पास क्या प्रूफ थे, दैट यू हैव टू प्रोवाइड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर आपकी कहीं पे भी एक मिसमैच आई, मिस्टेक आई, लेट मी टेल यू, वो एक की जगह 10-50 बंदों की डिटेल निकलवा लेंगे आपसे, और गलतियों पे गलतियां निकालेंगे, जहां पे आप अपने आप को ना सेव कर पाएंगे ना एम्प्लॉयर को सेव कर पाएंगे। एंड गवर्नमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस जो भी लेना है वो सब वसूलेगी। So it's my request, whenever any employee is coming to you, ask what exactly rent you are paying, that you have to mention. सारे डिडक्शन अलाउ करने के बाद एज यू सी, उसकी मंथली टैक्स लाइबिलिटी मेरे एम्प्लॉय की 20,638 हो गई, वेयर अर्लियर इट वाज 33,248 रुपीज। 12,610 रुपए उसकी नेट इन हैंड सैलरी बढ़ गई। So today's topic, which was the statutory deduction from the salary, we have done. Now there is an exercise for you. राकेश और मुकेश, जिसका सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है आपके पास, अब आपको उनकी मंथली टीडीएस की कैलकुलेशन भी बतानी है। राकेश और मुकेश दोनों आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप मुझे बताइए मेरी मंथली टीडीएस कितनी डिडक्ट होगी मेरी सैलरी से। राकेश जिसने ज्वाइन किया 12 सितंबर को ज्वाइन करने वाला है, उसकी एनुअल सीटीसी लिखी है, फ्लेक्सी भी दिया हुआ है। मुकेश जिसकी ज्वाइनिंग ऑलरेडी 10 अगस्त को हो चुकी है, उसकी एनुअल सीटीसी आपके सामने है। फ्लेक्सी हम कुछ भी नहीं दे रहे, मैक्सिमम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो 12% ऑन एक्चुअल। आपको शेयर करना है कंपैरिजन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड रेज्यूमे दोनों एम्प्लॉयज के लिए, सो दैट दे कैन टेक अ डिसीजन कि वो न्यू रेज्यूमे ले या ओल्ड रेज्यूमे। Insurance, that is 90,000. Medical insurance self 2150. Medical insurance parents is 60 above 5,100 rupees. Monthly rent is 12,500. Tuition fees, that is 3,400 rupees per month. Interest paid on housing loan is 3,20,000 rupees, and principal of housing loan paid is 75,000 rupees. So you have to prepare the TDS calculation for old and new tax resume, and you have to share the comparison with me